Dear student, I am going to start lesson 6. The name of the lesson is The King's Choice. Dear student, इसमें एक लोयन की स्टोरी है और वह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप इसको ध्यान से सुनेंगे. Once there was a big, handsome, fierce, and a strong lion. He was the king of the forest. All the animals used to present gifts to him, but the lion's demands continued to grow. One day he thought that a king must have some courtiers. He called a fox, a leopard, and a crow and said he wanted them to be his friends. The fox is known to be wise and clever, so you will be my advisor. The fox bowed his head low. Then he turned to the leopard. The leopard is known to be alert and swift footed. You will be my bodyguard. Thank you, Your Majesty, said the leopard. And lastly, he called the crow. You are bird and can fly high. I want to be my messenger. Thus he appointed them as his courtiers. All the three took oaths of loyalty to the king. The lion promised them food and protection. They never opposed the king as his wishes were law. Whenever he rode, they stood in awe. They followed him wherever he went. When the king went hunting, they found the animal for him to kill. After his fill, he left the remains for them. They always had enough to eat. एक बार एक हैंडसम और स्ट्रॉन्ग लोयन था जो कि जंगल का राजा था. सभी उसे उपहार भेंट करते थे, लेकिन शेर की मांग बढ़ती चली जाती. एक दिन उसने सोचा कि एक राजा के पास कुछ दरबारी होने चाहिए. उसने एक लोमड़ी, तेंदुए और कोए को बुलाया और कहा कि उन्हें अपने दोस्त बनाना चाहता है. लोमड़ी बुद्धिमान और चतुर होने के लिए जानी जाती है, इसलिए लोमड़ी उसकी सलाहकार होगी. लोमड़ी ने अपना सिर झुकाया, फिर वह तेंदुए की ओर मुड़ा और कहा कि तेंदुआ तेज और सतर्क है, इसलिए वह मेरा अंगरक्षक होगा, यानी बॉडीगार्ड होगा. फिर उसने धन्यवाद बोला. अंत में उसने कोए को बुलाया और कहा कि आप एक पक्षी है और ऊंची उड़ान भर सकते हो, इसलिए मैं आपको अपना सूचक यानी मैसेंजर बनाऊंगा. इस प्रकार उसने उन तीनों को दरबारियों के रूप में नियुक्त कर लिया और तीनों ने राजा के सामने वफादारी की शपथ भी ली. और लोयन ने भी उनकी सुरक्षा का वादा किया और उन्होंने भी शपथ ली कि वे भी कभी भी राजा की आज्ञा का अनादर नहीं करेंगे. जब भी वो उन पर चिल्लाएगा, वे पूरी आदर के साथ में उनके सामने खड़े रहेंगे. वो वैसा ही करेंगे जैसा वो चाहता है. जब भी राजा शिकार के लिए जाता है, ये तीनों उसके लिए शिकार का इंतजाम करते थे. पहले लोयन उस शिकार को खा लेता था और जो बचता था वो फिर इन तीनों को दे देता था. One day the crow said to the king, Your Majesty, have you ever tasted the camel's meal? It's quite tasty and sweet. I ate some in a desert once. The lion had never seen a camel but longed to taste the camel's meal. But where can we get a camel? He asked. Once flying over a desert which is some mile away, I saw a lone camel there. It looked big and fat. The lion looked at his other advisor. They welcomed the idea and decided that the crow would show them the way. The next morning, the lion and his advisor set off for the desert. They soon reached the desert. Once they left the forest, blazing sun beat down on them. It was unbearably hot. High up in the cool air flew the crow. Hurry along, the crow called out. The camel is not far off. But the lion could not go further. The hot sand had burned his paws. Stop, he commanded to the others. Let's go back to the forest. I don't care for camel's meat. एक दिन कोए ने राजा से कहा, क्या आपने कभी ऊँट का मीट खाया है? यह काफ़ी स्वादिष्ट और मीठा होता है. मैंने एक बार रेगिस्तान में खाया था.
शेर ने कभी ऊँट नहीं देखा था, लेकिन उसके मीट का स्वाद लेने के लिए तरस रहा था। शेर ने कहा, हमें ऊँट कहाँ मिल सकता है? एक बार रेगिस्तान में उड़ते समय मैंने एक ऊँट देखा था। वो बहुत मोटा और बड़ा लग रहा था। शेर ने अपने अन्य सलाहकारों को देखा और उन्होंने सोचा और तय किया कि कौवा उन्हें रास्ता दिखाएगा। अगली सुबह शेर और उसके सलाहकार रेगिस्तान के लिए रवाना हो गए। वे जल्द ही रेगिस्तान में पहुंच गए। एक बार वे जब जंगल से बाहर निकले तो बहुत तेज धूप उन पर पड़ रही थी। कौवा ठंडी हवा में उड़ रहा था। कौवा बोला, जल्दी करो, ऊँट पास में ही है। लेकिन शेर आगे नहीं जा पा रहा था। गर्म रेत ने उसके पंजे जला दिए थे। रुक जाओ, शेर ने बोला, चलो वापस जंगल में चलते हैं। मुझे ऊँट के मीट की कोई परवाह नहीं है। His advisors were frightened. They did not know how to get the lion back home. The forest was far behind them. The leopard wanted to run away. The crow wanted to wait and watch. But the clever fox thought of a plan. Off he ran to the desert, saying, I will bring some help. He ran to the camel. The camel was very surprised to see a fox in the desert. Hurry, friend, said the fox. Our king wants you at once. Our king? Who is that? I don't know any king. I know only my master, for whom I carry loads across the desert. Our king is a lion. He has killed your master, so now you are free. The lion invites you to live at his court. Come along. Without thinking, the camel followed the fox, and when both reached the lion's camp, the crow and the leopard were surprised. Even the lion was pleased in spite of his burnt paws. उसके सलाहकार डर गए थे। वे नहीं जानते थे कि कैसे वापस शेर को घर ले जाए। जंगल बहुत दूर था। तेंदुआ भागना चाहता था। कौवा इंतजार करना और देखना चाहता था। लेकिन चतुर लोमड़ी ने एक योजना के बारे में सोचा। लोमड़ी दौड़ी रेगिस्तान के की ओर आवाज लगाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मदद लगाऊंगी। लोमड़ी ऊँट के पास गई। ऊँट लोमड़ी को रेगिस्तान में देखकर हैरान हो गया। लोमड़ी ने कहा, जल्दी करो मित्र, मेरा राजा तुरंत तुमसे मिलना चाहता है। केमल ने कहा, कौन तुम्हारे राजा हैं? मैं तो किसी राजा को नहीं जानता हूँ। मैं तो केवल अपने मालिक को जानता हूँ, जिसके लिए मैं रेगिस्तान में सामान लाता हूँ। लोमड़ी ने कहा, हमारा राजा एक शेर है जिसने तुम्हारे मालिक को मार डाला है। अब तुम आज़ाद हो गए हो, इसलिए शेर आपको अपने दरबार में रहने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अब केमल बिना सोचे समझे ही फॉक्स के पीछे पीछे चल दिया और लोयन के कैंप तक पहुंच गया। उन्हें देखकर कौवा और तेंदुआ हैरान हो गए। यहाँ तक कि शेर भी अपने जले हुए पंजे के बाद भी खुश हो गया। Get on the camel's back, your majesty, said the fox. We will return home. The lion at once jumped on to the camel's back, and the fox and the leopard sat behind the lion. When they returned to the forest, they were tired and hungry. The three advisors looked at the camel intently. Then they looked at each other and smiled mischievously. They thought it was time for dinner now. The lion knew what was going on in his courteous minds. He turned to the camel and said, I had to thank you for saving my life. You are welcome to live with us as long as you live. I promise you my protection. The courtiers were shocked. They felt disappointed to know that the king wanted the camel to live, which they brought here for dinner. However, they could not complain as he was the king. Now the lion could not hunt as his paws were badly burnt. He was very hungry indeed.
लोमड़ी ने कहा कि महाराज, अब आप ऊँट की पीठ पर बैठ जाओ, अब हम घर लौट चलेंगे। शेर एक बार में ऊँट की पीठ पर बैठ गया। उसके पीछे लोमड़ी और तेंदुआ भी बैठ गए, और जब वे जंगल में पहुंच गए तो वे बहुत थके हुए और भूखे थे। तीनों सलाहकारों ने ऊँट की ओर देखा किसी इरादे से और मुस्कुराने लगे। एक दूसरे को देखकर उन्होंने सोचा कि अब भोजन का समय हो गया है। शेर को तो मालूम था कि उसके दरबारियों के दिमाग में क्या चल रहा है। वह केमिल की ओर गया और बोला कि तुमसे मेरा जीवन बच गया है, इसलिए शुक्रिया। और जब जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा का भी वादा करता हूँ। दरबारी जो थे वे शॉक्ड हो गए, क्योंकि किंग तो उसे जिंदा रखना चाहता था, लेकिन वे तो उसे अपने डिनर के लिए लाए थे। उन तीनों ने शिकायत नहीं की, क्योंकि राजा तो शेर है। अब शेर शिकार तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पंजे बुरी तरह से जल गए थे, लेकिन शेर बहुत भूखा था। Fox, leopard, crow, he roared, don't you see I am ill and hungry? Go and get me some food. The courtiers had to obey the king. They went out and sat down to discuss what to do. I have a plan, said the fox after a while. We shall make the camel request the lion to eat him. He told the plan, and they all agreed that it was a good idea, so they came back to the king. First, the crow stepped forward, bowing low. Your Majesty, we have found no food, but we cannot let you suffer. I am little creature, please eat me, said the crow. लोमड़ी, तेंदुआ, कौआ, ऐसा शेर ने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं भूखा और बीमार हूँ? मेरे लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करो। तीनों ने राजा की आज्ञा मान ली और बाहर जाकर चर्चा करने लगे। लोमड़ी ने कहा, मेरे पास एक योजना है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि ऊँट खुद शेर से आग्रह करे कि मुझे खा लो। और लोमड़ी ने अपने विचार बताए, जिससे सभी राजी हो गए। यह एक अच्छा विचार है, इसलिए फिर वे शेर के पास गए। पहले कौवा आगे बढ़ा और बोला कि हमें भोजन नहीं मिला है आपके लिए, लेकिन हम आपको ऐसा नहीं देख सकते हैं। मैं एक छोटा जी हूँ, आप मुझे खा लो, ऐसा कौवे ने कहा। द फॉक्स पुश द क्रो असाइड, आई हैव मोर फ्लैश ऑन मी, प्लीज ईट मी सर। द leopard rushed in, I am even bigger sir. Seeing their proposal of the offering, the camel too wanted to show his loyalty to the king. Your Majesty, he said, I am willing to sacrifice my life to save your. These friends are more useful than I am. Eat me, please. These words brought smiles afresh on the faces of the advisor, but the lion stopped them. You are all good and loyal. I am really touched by your offers. I shall eat you one by one as you offered yourself in order. Not for a moment did they wait, and the three ran away from there. The lion had a hearty laugh. He said to the camel, you have been loyal and good. You shall be my friend as long as I live. This made the camel very happy. फॉक्स कोए को धक्का देकर आगे आती है और कहती है कि मुझ में अधिक मांस है या मीट है, इसलिए मुझे खा लो। अब तेंदुआ दौड़कर आता है और कहता है कि मैं और ज़्यादा बड़ा हूँ, इसलिए मुझे खा लो। फिर ऊँट अपनी वफादारी दिखाकर बोलता है कि अब आप अपने साथियों को मत खाइए, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे बजाय, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। तीनों जो सलाहकार थे वे बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि वे तो ऐसा ही चाहते थे। लेकिन शेर ने उसे रोक दिया और बोला कि तुम सभी वफादार हो, इसलिए मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ तुम्हारे प्रस्ताव से। अब मैं तुम्हें एक एक करके खाऊंगा, जैसा तुमने प्रस्ताव किया है। जैसे ही तीनों ने शेर की यह बात सुनी, वे वहां से भाग गए, एक क्षण नहीं रुके। इसे देखकर लोयन हंसने लगा।
शेर ने ऊंट से कहा कि तुम ही सच्चे वफादार हो और अच्छे हो। तुम तब तक मेरे दोस्त रहोगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। डियर स्टूडेंट, इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें हमेशा वफादार रहना चाहिए, कभी भी अपनी वफादारी नहीं छोड़नी चाहिए।